मिस्टर पीयूष जी से। शायद वो हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। जीएनजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र गांधी जी से मेरा अनुरोध कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करके, स्वागत भाषण प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। शायद कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से वो हमारे साथ में नहीं जुड़ पा रही हैं, जबकि अभी तक वो उपस्थित थी। लक्ष्मी मैम, प्रिंसिपल मैम कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, आप उनको बोलिए कि अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। मैम, I request Dr. Mrs. Varinder Gandhi ji to please start with her welcome address. डॉक्टर मिसेस वरिंदर गांधी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज आप अपना स्वागत भाषण शुरू कीजिए। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I feel elated and privileged to extend a heartiest welcome to Honorable Education Minister of Haryana, Shri Kanwar Pal ji, who has graciously agreed to inaugurate the 7-day workshop on revised assessment and accreditation framework of NAAC for colleges. Such an online initiative to promote learning among the teachers of colleges during the time of national lockdown is indeed the need of the hour, and we are honored that this is being inaugurated by none other than the Education Minister of Haryana. A heartiest welcome to our guest of honor, Mr. Piyush MG, founder IQAC Cluster India, and to our resource person, Dr. Namita Rajput, Principal, Shri Aurobindo College, University of Delhi, who will enlighten us about the framework of NAAC during these 7 days. A warm welcome to Professor Jay Kaushal, Assam University, Professor K.K. Jha, Mahatma Gandhi Sansthan, Mauritius, Dr. Harish Arora ji, PGDAV College, Delhi, and other academicians and research scholars from other parts of the country and abroad. Our resource person, Dr. Namita Rajput, has been dispensing her services as the principal of Shri Aurobindo College since 2017. She has a rich teaching experience of 27 years, and her areas of research include banking and finance, human resource management, and sustainability. She has to accredit over 200 conference proceedings and publications and has presented papers in over 150 national and international seminars. She has published over 33 books and has contributed chapters in about 25 books. Credited with copyright of 3 theories, she has also composed 34 modules for UGC project E-Pathshala. She is a member of the editorial advisory board of various reputed national and international journals. To crown her achievements, she has to her credit various philanthropic activities which she undertakes through her NGO. She is a recipient of various prestigious awards conferred upon her by Government of India for her contribution in the fields of education, science, social work, and leadership. She has recently been appointed by UGC as one of the members of the expert committees for Saksham web portal. I would like to introduce Gundana Girls College to all of you in brief. Our college was established by the great visionary and philanthropist Sant Nishchal Singh Ji Maharaj in 1973 with a vision to educate the daughters of the nation. The steadfast pursuit of excellence has led the college to carve an exclusive niche for itself in the state of Haryana. With the highest CGPA score of 3.10 in the district of Yamunanagar awarded by NAAC, the college takes pride in being one of the foremost women colleges of the state. Affiliated to Kurukshetra University, Kurukshetra, the college has consistently been providing quality education in varied streams like humanities, science, commerce, information technology, biotechnology, computer sciences, mass communication, and multimedia. Keeping in view the skill-oriented educational requirements, various vocational courses were also
offered to the students. We offer 39 UG courses, 14 PG courses, and 9 career-oriented courses to cater to the present-day necessity and demand of skill development-based education. We also have 2 courses, Web Designing and Beauty Wellness, under the scheme of Community College of UGC. Ours is the only college under Kurukshetra University which offers a 4-year integrated BA B.Ed, BSc B.Ed course. With these words, I once again welcome you to our college. I'm sure this 7-day workshop is going to be a very fruitful and enriching experience for all our participants. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। माननीय सर, आपने हरियाणा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिन नीतियों को लागू किया है, लॉकडाउन के मुश्किल समय में आपने जिस तरह से ऑनलाइन व्यवस्था करी है, उस ऑनलाइन व्यवस्था पर चलते हुए हमारा कॉलेज भी पिछले माह से कुछ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरा मिसेस गांधी जी से अनुरोध कि मैम प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। सर, पूरे हरियाणा में आपने जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सभी को प्रेरित किया, उन्हीं शिक्षा पद्धतियों पर चलते हुए हमारा कॉलेज भी पिछले माह से कुछ ऑनलाइन गतिविधियां कर रहा है, जिसमें सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज ने दिनांक 2 मई को दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के साथ में मिलकर संयुक्त रूप से लॉकडाउन और रचनात्मकता विषय के ऊपर एक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजन किया, जिसमें 830 प्रतिभागियों ने जूम, फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से अपनी सहभागिता की। साथ ही 3 मई 2020 को गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज ने दिल्ली के PGDAV कॉलेज इवनिंग के साथ मिलकर संयुक्त तत्वाधान में शोध के बदलते प्रतिमान और साहित्यिक चोरी विषय पर ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया, सर, जिसमें देश के कोने कोने के साथ कनाडा, मॉरिशस, डेनमार्क, फिजी सहित देश के असम, त्रिपुरा, दिल्ली, महेंद्रगढ़, पुणे इत्यादि विश्वविद्यालयों के साथ साथ कलकत्ता, मुंबई, राजस्थान, महाराष्ट्र, बैंगलोर, पूना सहित देश के कोने कोने से लगभग 1380 प्रतिभागियों ने, जो अब तक के वेबिनार का सबसे बड़ा स्कोर है, 1380 प्रतिभागियों ने गूगल मीट प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी सहभागिता की। साथ ही वेबिनारों की श्रृंखला में 4 मई 2020 को पुनः गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज ने PGDAV कॉलेज इवनिंग के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी विषय पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें मॉरिशस के महात्मा गांधी हिंदी संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर के झा मुख्य रूप से उपस्थित थे। सर, हमें बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इस वेबिनार में भी देश विदेश के कई प्रतिभागी सम्मिलित हुए और लगभग 1130 प्रतिभागियों ने गूगल मीट, यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी सहभागिता की। इसी तरह से 5 मई को गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज ने दिल्ली के श्री अरविंद कॉलेज इवनिंग के साथ मिलकर एक संयुक्त वेबिनार का आयोजन किया, जिसका विषय था लोक साहित्य संरक्षण व संकलन, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम के मिस्टर जय कौशल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इसमें भी लगभग 828 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। सर, यहाँ पे एक बात मैं विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहूंगी, क्योंकि अरविंद कॉलेज और गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज का नाम एक साथ आ रहा है। सर, इन दोनों कॉलेजेस ने, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज और श्री अरविंद कॉलेज दिल्ली, इन दोनों कॉलेजेस ने एक दूसरे की सहभागिता को देखते हुए, अपने अपने कॉलेजेस के प्रति एक दूसरे की प्रतिबद्धता को देखते हुए, एक दूसरे के डेडिकेशन को देखते हुए, इन दोनों कॉलेजेस ने मिलकर मार्च में एक MOU साइन किया है, जिसमें इन दोनों कॉलेजेस ने इस बात के प्रति संकल्पित हुए हैं कि भविष्य में जब भी यह दोनों कॉलेज एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करेंगे शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, उच्च शिक्षा के विकास के लिए, तब निःशुल्क रूप से ये दोनों कॉलेज एक दूसरे को अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, जो कि इस लॉकडाउन के समय में हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमें ऐसा लगता है कि इस दिल्ली कॉलेजेस के साथ में MOU को साइन करने वाला हमारा गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज शायद हरियाणा का हमारा पहला कॉलेज है।
सर, इसी के साथ ही इस अंतरराष्ट्रीय वेबिनारों के साथ ही आपसे प्रभावित होकर आपके मार्गदर्शन पर चलते हुए गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज ने आज 13 मई से लेकर 19 मई तक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें आज हमारे साथ आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इसी प्रकार से आने वाली 22 मई से लेके 7 दिवसीय दूसरी कार्यशाला का भी शुभारंभ हो रहा है, जो केवल और केवल आपके ही प्रेरणा के कारण हम लोग संपन्न कर पा रहे हैं। सर, हम बात करते हैं आज के वर्कशॉप के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नैक अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद की स्थापना सितंबर 1994 में यूजीसी के द्वारा बैंगलोर में की गई, जिसका उद्देश्य भारत के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को मान्यता देना, उनका मूल्यांकन करना व इसके साथ ही शिक्षा नीतियों की गुणवत्ता में सुधार करते हुए संस्थानों की क्षमताओं, उनके संसाधनों और अवसरों को बढ़ावा देना है, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को और भी अधिक बल मिल सके। जबकि प्रत्यायन नैक परिषद द्वारा दिए गए सर्टिफिकेशन को रेफर करता है, जो केवल 5 सालों के लिए मान्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी मंत्रालयों के जितने भी सुप्रयास हैं, उन्हीं सुप्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्तमान भारत में वन नेशन वन पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, जिससे हमारा शिक्षा मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है। इस कारण उच्च शिक्षा प्रणाली से संबद्ध आयोग व इनसे संबंधित कमेटियां, फिर चाहे वो नैक कमेटी हो या फिर एक्यूएसी, ये भी इसी वन नेशन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। वर्तमान में अपनी परंपरागत शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करते हुए गुणवत्ता या क्वालिटी को ध्यान में रखकर नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, जिसके द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों व महाविद्यालय एक ट्रैक पर चलते हुए किस प्रकार से अपने अपने संस्थानों को मैनेज कर सकते हैं, किन परिवर्तित बिंदुओं को अपनाकर उच्च गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा के लिए ही हमारे महाविद्यालय ने इस 7 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें सर आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपना ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब हम लोग आपकी ही प्रेरणा से प्रेरित होकर ऑनलाइन गतिविधियों को संपादित कर रहे हैं, तो सर आप हमको आशीर्वचन दीजिए, जिससे कि हमारे यहाँ प्रयास फलीभूत हो सके और हम सभी अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकें। आप सादर आमंत्रित हैं सर। मेरे लिए बड़ी खुशी व गर्व की बात है कि हमारे जिले के कॉलेज गुरु नानक गर्ल कॉलेज सतपुरा यमुनानगर में लॉकडाउन के दौरान 7 दिवसीय 13 मई से 19 मई ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय कॉलेज के लिए नैक का संशोधित मूल्यांकन और मान्यता का ढांचा है, जिसके लिए मैं इस अवसर पर कॉलेज के प्रधान संत करमजीत सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी MS सानी जी एवं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीरेंद्र गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लॉकडाउन से पहले भी गुरु नानक गर्ल कॉलेज समय समय पर अपने कुशल नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है, लेकिन लॉकडाउन के समय में भी कॉलेज जिस प्रकार समय का सदुपयोग कर रहा है, उसके लिए भी सभी बधाई के पात्र हैं। हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि कॉलेज में पिछले हफ्तों में भी लगातार एक नहीं बल्कि 5 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वेबिनारों का आयोजन किया गया है। इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट व संयोजका डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता सहित सभी बधाई के पात्र हैं। अपने इन प्रयासों के कारण आज गुरु नानक गर्ल कॉलेज हरियाणा के मुख्य कॉलेजों में से एक है। ऑनलाइन कार्यक्रम की श्रृंखला में आज की वर्कशॉप के लिए मैं देश व विदेश के कोने कोने से जमा शिक्षाविदों को बधाई देता हूं, जो आज इस मंच का हिस्सा है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की विशेषज्ञ डॉक्टर नमिता राजपूत, प्रिंसिपल अरविंदो कॉलेज, IQAC इंडिया क्लस्टर के फाउंडर श्री पीयूष जी और माननीय अतिथि प्रोफेसर
जय कौशल जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी असम, प्रोफेसर के झा, महात्मा गांधी संस्थान मर्सिस, डॉक्टर हरीश अरोड़ा जी, पीजी डीएवी कॉलेज संधाय को भी कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ देश विदेश के विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रिंसिपल और प्राध्यापकों को भी सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ कार्यक्रम की सफलता के लिए ईश्वर से मंगलमय कामना व प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध अभी मेरा आपसे और बाकी है। आपने हमारे विनम्र निवेदन को स्वीकार करते हुए आज आपने हमारा मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया। सर, भाव भूमि पर अपने भाव पुष्पों को मैं आपको सादर अर्पित करती हूँ, अपने संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपने महाविद्यालय के कड़कण की ओर से। इसी के साथ में अपने भाव पुष्पों को अर्पित करते हुए हाथ जोड़कर आपसे एक विनम्र निवेदन और है कि सर 22 मई से लेकर 28 मई तक हम लोग अपनी एक दूसरी वर्कशॉप का भी आयोजन कर रहे हैं, जो कि हमारी रिसर्च मैथोलॉजी के ऊपर आधारित है। सर, कोई दो राय नहीं कि ये दोनों वर्कशॉप जो कि हमारे कॉलेज के द्वारा संपादित की जा रही हैं, वर्कशॉप के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। तो इस सोशल मंच पर मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आप उस दिन भी हमारा मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर अगर आप हमें अनुग्रहित करेंगे तो सर हमें प्रेरणा मिलेगी, हमारा उत्साहवर्धन होगा और शायद हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि बहुत कई बार समय समय पर आपने हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। आपका सहयोग और सानिध्य सदा ही हमारे विद्यालय को मिलता रहा है, महाविद्यालय को। तो सर, इस इंटरनेशनल मंच पर मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ अपने कॉलेज की तरफ से कि आप हमारा 22 मई का भी आतिथ्य स्वीकार करें। जी जी, स्वीकार है जी आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपका हार्दिक आभार करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। शब्द भाव भूमि से बहुत ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं मैं अपने आप को संयमित कैसे कर पाऊं। सर, मैं बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपका कि आपने अपने इतने अमूल्य समय में से, मैं यहाँ पे अपने सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगी कि कल सर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी चंडीगढ़ में। सर शाम को उस मीटिंग के लिए गए, चूंकि आज मॉर्निंग में हमारे कॉलेज का प्रोग्राम था, तो सर देर रात तक वहां से लौटे केवल इसलिए जिससे कि वो हमारे कॉलेज को अपना आशीर्वाद प्रदान कर सके। तो सर, आपके इस प्रयास के प्रति जो आपका ये आशीर्वाद आज हमें मिला है, सर हमारा कॉलेज सदा सदा आपका आभारी रहेगा। इसी तरह से आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न हूँ, भावातिरेक से मेरे शब्द थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन कहीं की बातों का हम वापस अपने कार्यक्रम में आते हैं। मित्रों, हमारे साथ में IQSC के क्लस्टर के फाउंडर मिस्टर पीयूष जी हमारे साथ में हैं। मेरा उनसे अनुरोध कि वो वर्कशॉप को एड्रेस कर इस वर्कशॉप का शुभारंभ करने की कृपा करें। मिस्टर पीयूष जी से मेरा अनुरोध।